Hey everyone, welcome to another episode of Primary Market Chatter. This is the November first week episode. हमने जुलाई में स्टार्ट किया था तो उस हिसाब से it's been July, August, September, October. We've been doing it for 4 months now, entering the fifth month. नवंबर फर्स्ट वीक में चार बड़े आईपीओ आ रहे हैं, नहीं तीन आ रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि नीवा भूपा जो है वो फोर्थ नेक्स्ट सेकेंड वीक में क्लोज होगा, सो उसको तब कवर करेंगे. सो बेसिकली नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास तीन मेजर आईपीओज हैं. स्विगी का सबसे पहले सेजिलिटी आएगा, उसके बाद स्विगी आएगा और एक्मे सोलर आएगा. सेजिलिटी इज एंडिंग ऑन November 7th, स्विगी एंड एक्मे सोलर आर एंडिंग ऑन November 8th. So we thought, because Swiggy is such a vast topic that it deserves its own space. Plus also in तीनों companies के बारे में, like after the anchor list is released and probably closer to the date, there will be a lot more fruitful discussion. So but since we have been doing this space on every Sunday at 9:30, we didn't want to disrupt the rhythm. So we thought we'll do a space at 9:30 this Sunday just to talk about Swiggy. We feel there are a lot of misconceptions in market about Swiggy, how it is priced expensive than Zomato and all of those queries. We'll take a few of them and talk about Swiggy just to clarify the air and just share our view of Swiggy. But yeah, before we kind of move towards that, just want to highlight that we are not SEBI registered and any of our reviews should only be taken at a face value. Do definitely do your own due diligence and consult your financial advisor. Anything that we say should not be considered as a apply or a not apply recommendation. With that, maybe we can start talking about Swiggy as the first IPO, and if there's enough time and interest, we can probably talk very small, like in small segments about Sagility, Acme Solar as well, about what we feel about those IPOs, and then maybe also there's a big SME IPO coming, Rose Murta Digital Services, which is the largest SME raise till date of 208 CR. So maybe we can talk about that as well. But before that, let me talk about Swiggy and just set it up for Tanmay, who can do a initial intro and then we can do a discussion on that. So talking about Swiggy, the raise, it's a big size IPO. It's 11,300 CR IPO. So should definitely be very interesting. And out of which 4,500 CR is fresh and offer for sale is 6,800 CR. And the company is essentially doesn't need any introduction. I was reading is probably one of the biggest names, top 25 biggest brands in India right now, Swiggy. So definitely a very interesting issue. Maybe Tanmay, do you want to go ahead and talk about it at a very high level? Is my voice clear? Yes. हाँ, सो मैं एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर वो रेवेन्यू कैसे बुक करता है वो सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा. So Swiggy is a new age consumer tech platform which has services like food delivery and household items. Household items के delivery को आप quick commerce भी बोल सकते हो. That is done via their Instamart service. They also offer some other services which includes Dine Out, which is their restaurant reservation segment. Stepping Out events bookings. Swiggy Genie is their product pickup and drop-off platform. Swiggy Mini is their hyper-local commerce platform. It also runs membership programs like Swiggy One, and it also has its own digital wallet like Swiggy Money. तो बेसिकली स्विगी पैसे बस कैसे बनाता है, तो उसके चार मेन स्ट्रीम से. फर्स्ट इज द कमीशंस. तो कमीशंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एक 100 रुपए की चीज आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहे हो, उस पे आपको डिलीवरी वगैरह सब भरना पड़ेगा, बट वो रेस्टोरेंट 100 रुपए में भी एक परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन स्विगी को देता है. ओके, द सेकंड वन इज एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू. आपने देखा होगा कि कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं, फिर कोई क्लाउड किचन्स होते हैं जो जनरली टॉप पे दिखते हैं, या फिर कोई भी ऑफर जनरली उन्हीं के रेस्टोरेंट्स पे, तो दैट इज एडवर्टाइजिंग काइंड ऑफ थिंग कि वो आपको आगे दिखता है, तो उसका भी एक रेस्टोरेंट का प्लेटफॉर्म एडिशनल फी देते हैं. थर्ड वन इज द फीस. फीस में क्या क्या आता है? डिलीवरी प्लेटफॉर्म, डिलीवरी का फी आता है, प्लेटफॉर्म का फी आता है, कभी कोई मतलब फ्लड वगैरह आ जाए, फिर बारिश बहुत ज्यादा आ जाए, तो फिर वो वैसे प्रोन एरियाज में वो फीस, एक्स्ट्रा फीस लगाते हैं. और फोर्थ इज देयर सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, जो बहुत सारे मेंबरशिप प्रोग्राम्स चलाते हैं उनका एक फीस होता है. तो कंपनी 11,327 करोड़ रुपीस रेस कर रहा है. उसमें से 4,500 इज एन फ्रेश इशू. 4,500 में 5-6 चीजें. पहला है तो अपना क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है, उसमें वो डार्क स्टोर्स का एक्सपांशन कर रहे हैं, उसके लिए 1180 करोड़ उन्होंने रिजर्व रखे. दूसरा है ब्रांड मार्केटिंग प्रमोशन, ये सारी चीजें के लिए 1115 करोड़ है. तीसरा है टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें 700 करोड़ खर्चा करेंगे.
इनके बुक्स पे 250 करोड़ का 260 करोड़ का डेट है, उसमें से 165 का रिटायर कर रहे हैं और बचा हुआ जीसीपी में, और जो बचा हुआ प्रोसीड से 6,828 करोड़ पूरा ओएफएस है। ओके, अब इनके फाइनेंशियल्स पे आता हूं मैं। तो फाइनेंशियल्स ने रेवेन्यू लॉस के साथ जीओवी और एबिटडा में मैं बताऊंगा। तो FY22 में रेवेन्यू इन्होंने 5700 करोड़ किया, उन्होंने उसके सामने नेट लॉस किया 3600 करोड़ का। बट उसमें इनका जीओवी था, व्हाट इज जीओवी, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट बोथ द प्लेटफॉर्म। FY22 में वो नहीं था, बट FY23 और 24 में वाइड अप हुआ था, तो वो 20,120 करोड़ था। FY23 में रेवेन्यू बढ़ा 80 टू 64, 8,264 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके सामने लॉस हुआ 4180 करोड़, मतलब 50% नेट लॉस मार्जिन था। और जीओवी इनका 27,740, रफली 35%, 37% ग्रोथ। FY24 में रेवेन्यू और बढ़ा ऑलमोस्ट बाय 40%, 11,250 करोड़ के आसपास, और लॉस इनका ऑलमोस्ट आई थिंक 40% ट्रिम हो गया, 2350 बचा है। और इनका जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 35,000 करोड़ से। Q1 में भी इन्होंने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, रेवेन्यू एट 3,222 करोड़ एंड नेट लॉस ऑफ 611 करोड़। अभी रेवेन्यू का ग्रोथ Q1 में 33% था और जीओवी में भी ऑलमोस्ट 27-28% था, क्योंकि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन अभी बढ़ा है, तो उसकी वजह से वो जीओवी 27% है और रेवेन्यू 33% है। इनका जीओवी 10,190 करोड़ था। अभी ये लॉस में अगर मैं एबिटडा लॉस बोलूं तो एबिटडा लॉस सिर्फ आई थिंक 350 करोड़ है, बाकी का इसॉप जो इन्होंने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान से ना उसका एक कॉस्ट किया है। अब ना मैं इसका ब्रेक इवन करके बताता हूँ आपको कि ये कौन सा बिजनेस कैसा कर रहा है। तो इनको जो फूड डिलीवरी बिजनेस है, जो इनका कोर बिजनेस है आज के पॉइंट पे, इसने Q1 में पॉजिटिव एबिटडा, मतलब प्रॉफिटेबल हो चुका है इनका फूड डिलीवरी बिजनेस। एबिटडा 58 करोड़ का पॉजिटिव था। और इनका जो क्विक कॉमर्स था वहां पे इनको ऑलमोस्ट 300 करोड़ का एबिटडा लॉस हुआ, इसलिए वजह से कंसोलिडेटेड नंबर्स लॉस है। और वो इस आपका कॉस्ट ऐड करूंगा, और मैं छोटा सा फाइनेंस कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन तो वैसा हुआ है। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन था ना, अभी 6.4% हो चुका है। ओके, फूड डिलीवरी में जो एक टाइम 4.8% था। आई थिंक जोमेटो ने 6.9% किया FY24 में, अभी इन्होंने Q1 में 6.4% किया है। इनका जो क्विक कॉमर्स है, ये -7.5% का -3.2%, मतलब 50% नहीं 60% से ज्यादा का इम्प्रूवमेंट है। और अगर मैं ब्लेंडेड लेवल पे बोलूं तो इनका जो FY23 में 2.8% था, FY24 में, वो अभी Q1 में 3.65% होगा, जो बहुत अच्छी ग्रोथ है। मैं इसके वैल्यूएशन पे आऊं तो जोमैटो अभी चल रहा है 2.2 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे। ओके, और मैं स्केल ऑफ बिजनेस बोलूं तो जोमैटो जस्ट 4% लार्जर देन स्विगी, but the pricing has been done at a valuation of roughly 86,000 crores, which is approximately $10.6 billion। तो 60 to 62% के डिस्काउंट पे आया है स्विगी। तो अभी लोग ना इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि यार जोमेटो का शेयर 200 रुपए में चलता है, ये 300 ला रहा है, फेस वैल्यू जोमेटो का 10 है, इसका 2 रुपए। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, आपको वैल्यूएशन वाइज देखना पड़ेगा। और इसका मार्केट कैप तो सेल्स देखोगे ना तो 65% डिस्काउंट पे स्विगी आया है। और मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, जनवरी 2022 में एक प्लेसमेंट हुआ था, बहुत बड़ा फंड रेस, आई थिंक 2,500 करोड़ का। तो उसमें टाइम्स इंटरनेट भी था, बड़े इन्वेस्टर है, तो उन्होंने 358 में इन्वेस्ट किया था। और अब अपने को 390% 390 रुपए पे मिल रहा है। तो जो द स्केल ऑफ बिजनेस हैज ग्रोन टू 2.5 टाइम्स, मतलब 2.5 गुना हुआ है बिजनेस उसके बाद, जनवरी 22 के बाद। और अभी भाव सिर्फ 10% ज्यादा मांग रहे हैं ये लोग। और एंकर बुक में जो डिमांड इनिशियली निकल के आ रही है वो बहुत स्ट्रांग निकल के आ रही है। एंड ओवरऑल मैं ब्लेंड लेवल पे देखूँ ना तो वन थिंग स्विगी इज डूइंग डिफरेंट इज लाइक, अभी इनका जो क्विक कॉमर्स के जो ये डार्क स्टोर्स बना रहे हैं, ये बहुत बड़े स्टोर्स बना रहे हैं। तो और इनका भी मैनेजमेंट ने बहुत खुल के बोला है कि हम क्विक कॉमर्स का जो ये कॉन्सेप्ट है, या मेट्रो सिटीज और Tier 1 के बाहर भी जाएगा, वी आर एक्सपांडिंग इनटू Tier 2। और देखो तो मैं जेप्टो और ब्लिंकिट आज वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो ये अपने खुद का नीश बना रहा है। तो आई फील कि प्राइसिंग इन्होंने अट्रैक्टिव रखा है। एंकर बुक भी बहुत अच्छी आनी चाहिए। सारा डिमांड अच्छा दिख रहा है एंड एवरीथिंग इज गुड। लाइक आई फेल्ट कि इन्होंने प्राइसिंग अच्छी की, सो इट शुड डू वेल। एंड लॉन्ग टर्म में मतलब इट्स नॉट लाइक ओला कि आप इसको प्रॉफिटेबल कब होगा वी डोंट नो, बट मेरे को दिखता है ये 1.5 साल में प्रॉफिटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सेकंड हाफ में होना चाहिए एज पर माई एस्टिमेट्स। तो मुझे पर्सनली पसंद आया ये इशू। इसका मैं वैल्यूएशन वाइज, एक्चुअली इसका वैल्यूएशन करते हो आपको सेगमेंट
को अलग अलग करके देखना पड़ेगा कि फूड डिलीवरी को ये फंडामेंटल्स पे कितना मल्टीपल मिलना चाहिए, क्विक कॉमर्स को कितना मिलना चाहिए। तो दैट वी ऑल विल बी डिस्कसिंग पोस्ट इंडियन एक्सप्रेस एंकर बुक आने के बाद मैं बहुत डिटेल में वो सारे वैल्यूएशंस वगैरह समझाऊंगा। बट मेरे को प्राइम ऑफिस से पसंद आ रहा है ये इशू। परफेक्ट। थैंक्स तन्मय। जस्ट वांट टू हाईलाइट, अगर किसी ने बीच में ज्वाइन किया है स्पेस, तो हम ये यूट्यूब पे भी डालेंगे। ऊपर मैंने यूट्यूब का कमेंट है पिन कमेंट्स में, सो गो अहेड एंड फॉलो द यूट्यूब चैनल एज वेल, वी विल पुट द स्पेस देयर। बट वन वन और टू थिंग्स विच आई वांट टू चेक विथ यू। मैंने जितने भी आर्टिकल पढ़े तन्मय, उसमें सब जगह वैल्यूएशन $11.3 बिलियन लिखा हुआ है। इट कम्स टू लाइक 92 90,000 सर करोड़। एक बात बोलूँ क्या, मतलब भूलना नहीं चाहिए, बट दिस शोज की क्वालिटी ऑफ our मीडिया। मतलब यार आपको 87,000 करोड़ को 84 से भी डिवाइड नहीं करते आ रहा है, तो इट्स शेम, लिटरली शेम ऑन दी आर्टिकल पार्ट। मनी कंट्रोल, सीएनबीसी जैसे लोग अगर इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं तो दे शुड इम्प्रोवाइज श्योरली। यार इनका वैल्यूएशन है 10.5 अप्रोक्स, 10.5 $10.6 बिलियन से 11.6 का नंबर कहाँ से निकल रहा है, वी डोंट नो। एक्चुअली बात ऐसा था ना कि आईपीओ आरएचपी आने से पहले मुझे भी एक्चुअली इनपुट मिले थे कि इन्होंने इनका ओएफएस का सेट थोड़ा सा बढ़ाया है, और फिर वैसा वो वैल्यूएशन करके ओएफएस का सेट बढ़ाया, और शेयर प्राइस तब 415 एंटिसिपेटेड था, तो इसके हिसाब से वो बन रहा था। बट वो उन्होंने वो पुराने वैल्यूएशन को, अभी भी मैं देख रहा था, कल भी कोई आर्टिकल आया था मनी में, उसमें भी 11 पॉइंट कुछ 3 या 6 था। तो इट्स नॉट रिलेवेंट। 10.6 इज अ रिलेवेंट नंबर। Yep, I would think अगर $1 बिलियन में छोड़े तो अराउंड 87,300 करोड़ का इशू है। वेरी रिचली प्राइस्ड आई फील। अगर आप जोमेटो देखोगे तो जोमेटो इज अराउंड 220 सर वो करोड़। प्रिसाइजली मैंने देखा 10.4 निकल के आ रहा है, $10.4 बिलियन बहुत प्रिसाइजली निकल के आ रहा है। पर वो 11.3 नंबर चल रहा है यार, कई जगहों पे देखा मैंने, कई सारी रिपोर्ट में। आई डोंट नो वेयर दे आर कैचिंग दैट। 11.3, 11.4, 11.6 ये चीजें चल रही है। हाँ, सो वो 11.3 से भी अराउंड 10% डिस्काउंट पे। स्विगी जोमेटो जो है वो 220 के करोड़ वैल्यूएशन पे, दिस वन कमिंग एट 87। So I feel they have left enough on the table. But just want to highlight, and maybe Tanmay, this is a question for you also. There is significant difference between Swiggy and Zomato. They should not be compared face to face. I'll tell you why. Swiggy was the first one who started फूड डिलीवरी। जोमेटो बाद में आया था। जोमेटो ना पहले मेन्यू बनाता था, बस मेन्यू सब डालता था। फिर उसके बाद जोमेटो ने पिवट लिया था, जहां उन्होंने बोला हम फूड डिलीवरी भी करेंगे। और स्विगी पहले से ही फूड डिलीवरी कर रहा है। सो एसेंशियली स्विगी हैज ऑलवेज बीन द इनोवेटर, कि भाई मैं काम पहले चालू करता हूँ। सिमिलरली क्विक कॉमर्स में भी उन्होंने सबसे पहले इंस्टामार्ट चालू किया था, जो उनका प्रोडक्ट है। जोमेटो का जो ब्रांड है ब्लिंकिट, वो बाद में आया था कंपैरेटिवली, क्योंकि उनने पहले वो ग्रोफर्स चलाते थे, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन डिलीवरी होती थी, कि एक दिन बाद घर पे दे जाएंगे। फिर उन्होंने उसको ग्रोफर्स को चेंज करके ब्लिंकिट बोलना चालू किया। तब से वो आया कि हम ना क्विक कॉमर्स करेंगे दोस्तों। So that's the primary definition, but how do you look at it, Tanmay? Because from my understanding, maybe this is something which I want to highlight for everyone. Swiggy has 45% market share in food delivery. Zomato has 55%. So Zomato overtakes it. उसके बाद ग्रोथ रेट भी देखोगे तो Zomato is growing at like 50% year on year at a high level. Swiggy is growing at 35%. तो उसको उसका भी थोड़ा सा डिस्काउंट मिलना चाहिए compared to Zomato. But how do you look at both of these points? हाँ सर, एक्चुअली आई अग्री श्योरली कि मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि जोमेटो का वैल्यूएशन मिलना चाहिए। सी मैं ना ये सेगमेंट्स को टुकड़ों में बांट के इसका वैल्यूएशन करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। सी जो इंस्टामार्ट था, इट डिलीवर्ड 120%, आई थिंक 90 to 120% के बीच ग्रोथ था। एंड सेम टाइम पे ग्रोफर्स का भी उतना ही, ब्लिंकिट का भी वही ग्रोथ था। तो मैं और प्रॉफिटेबिलिटी साइड पे मैं देखूँ तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, इंस्टामार्ट एंड ग्रोफर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन में, बहुत थोड़े बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस। तो मैं वो बिजनेस को सिर्फ स्केल के हिसाब से वैल्यू करूंगा। आई थिंक एक रिसेंट रिपोर्ट आया था, आई थिंक बर्नस्टीन का, गोल्डमैन का था, आई वाज नॉट श्योर, कि उन्होंने ब्लिंकिट को 90,000 करोड़ का वैल्यूएशन दिया था जोमेटो को 220 में से। उस वक्त उनका टारगेट 220 का था, जो एक्चुअली हिट हो गया। तो मैं वो उसके हिसाब से बोलूँ तो 90 का उन्होंने उस वक्त वैल्यूएशन दिया था। और अगर मैं स्केल ऑफ द बिजनेस बोलूँ तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5% का सब डिफरेंस है। प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही है, उतना ही लॉस चल रहा है, उतना ही मार्जिन से। अब मैं इसका 19 का मैं 70 तो ले ही सकता हूँ, है नॉट, 60 तो ले ही सकता हूँ कम से कम। फूड डिलीवरी को मैं अगर, अभी देखो फूड डिलीवरी अगर मैं बोलूँ तो क्लोज टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक आई थिंक 10 11 मल्टीपल, 11 और 12 सेल्स मल्टीपल ऑफ द कंप्लीट बिजनेस पे जोमेटो चल रहा है। आई थिंक इन्होंने जो प्राइसिंग की है
आई थिंक इट इज रफली 8 टाइम्स। तो ये अच्छा खासा डिफरेंस है। और इनका फूड डिलीवरी में अगर मैं बोलूँ तो आई डोंट फील कि जोमेटो की वो जितना फिर बचता है 1 30 में से मैं 1 10 भी मान लूं, बिकॉज उनका रिसेंटली अप्रिसिएशन है, तो मैं 1 10 में से यार स्विगी को तो मैं 70 से 80 तो देना ही चाहिए। तो आई फील कि ब्लेंडेड लेवल पे है। और जो इनका डार्क स्टोर का एक्सपांशन है, अगर आप डार्क स्टोर का नंबर देखो तो Q1 में स्विगी से अपना ब्लिंकिट से ज्यादा, आई थिंक 20 या 30 स्टोर इनके ज्यादा है। और ये अभी आईपीओ के मनी से और 300 से 400 स्टोर लाने वाले हैं। आई थिंक उससे ज्यादा है और बड़ा नंबर, वो अभी तक प्रिसाइसली आया नहीं है। कुछ कई जगह पे 550 बोल रहे, कई जगह पे 350 बोल रहे, बट मैं 350 भी ले लूं फिर भी ये ज्यादा रहेगा जोमेटो से। तो आई फील कि उसका अगर वो 2 20 पे, तो इसको 1 30 1 40 तो मिलना ही चाहिए। एंड देखो तो रिसेंटली जो और एक चीज इंटरेस्टिंग हाईलाइट करूंगा मैं इसमें, कि एक इसॉप हुआ था कि सीनियर मैनेजमेंट को शेयर्स दिए गए थे कंपनी के, ओके, जस्ट बिफोर आईपीओ। पर उसमें एक ऐसा क्लॉज है कि अगर ये शेयर का प्राइस यहाँ से 50 to 60% अप्रिसिएट नहीं होगा तो आप वो इसॉप्स रिडीम नहीं कर सकते हो। और ये उन्होंने खुद के लिए क्लॉज डाला है, ये सीनियर मैनेजमेंट ने खुद के लिए क्लॉज डाला, मतलब दे आर प्रिटी कॉन्फिडेंट कि हमारा शेयर का भाव ऐसे 50 से 60% ऊपर रहेगा। नहीं तो वो अपने लिए क्यों क्लॉज डालेंगे, वो तो इन्वेस्टर के लिए डालेंगे, फिर छोटे उनके एम्प्लॉयज के लिए डालेंगे स्टॉक्स को, वो खुद के लिए तो नहीं करने वाले। तो आई ओवरऑल फील की वैल्यूएशंस आर, आई वोंट से अभी कोई बोल सकता है कि जोमेटो बहुत भाग चुका है, जोमेटो का खुद का वैल्यूएशन महंगा है, तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। बट 2 20 का 81 पकड़ दो, इसको 31 तो मिलना ही चाहिए यार। 30% इज ऑल्सो फेयर डिस्काउंट। तो ओवरऑल लेवल पे मैं देखूं तो इशू थोड़ा चीप भी आया है, अट्रैक्टिव ही आया है। Got it. I feel a lot of that attractiveness has to do with the primary markets. The primary markets have been struggling. पिछले 5 IPOs, a lot of them have opened at discount and haven't done very well. So I feel this time, especially after Hyundai, the lead managers have learned their lesson and have placed it pretty well compared to that. But yeah, other than that, one more question which I am assuming everyone would have. But before that, I have posted one question for everyone. It is something which is very interesting, and I have a very, like, I am a loyal to my food delivery app. I do not switch. But I want to understand how many people have both the apps and how many people use both, or do you use the one which you use, like between Swiggy, Zomato, Zepto? Do you keep switching or do you use? So many questions डाला है उसमें chat में. Go ahead and answer that question as well. That would be interesting to see. But yeah, wanted to get your take on Zepto, Tanmay. I understand Zepto is the third player in the market, and I was reading an article from the Can yesterday which said Swiggy's experiencing a middle child syndrome, where जो सबसे बड़ा बेटा है जोमेटो, जो सबसे पहले लिस्ट हुआ, वो अब मार्केट में धक्के खा के गलतियां करके सीख गया, बिकॉज इट ऑल्सो हैड अ शेकी स्टार्ट टू द पब्लिक मार्केट्स, बट इट इज लाइक द बिगर चाइल्ड. Zepto is the young and the carefree जो फटाफट बढ़े जा रहा है. Swiggy is somewhere in between where it's not either able to get speed as well as it is not either able to get discipline. It's somewhere in between. But how do you compare it with the Zepto? हाँ, तो सर मैं ना थोड़ा रेवेन्यू और वैल्यूएशन पे आऊंगा जेप्टो के। तो जेप्टो जो ऑनेस्टली अभी तक नंबर्स इनके ऑफिशियल एमसी से जो मुझे आता है बाहर तो नहीं निकले, बट एक एस्टिमेट है इसका कि जेप्टो ने फॉर 24 में 9500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया है, 9500 करोड़। अरे इन्होंने रिसेंटली लास्ट मंथ राउंड किया, उसमें आई थिंक $5.2 बिलियन का वैल्यूएशन था। मतलब 5.2 अगर मैं बोलूँ तो होता है करीब 4,000 करोड़। तो 44,000 करोड़ पे इन्होंने 10,000 मतलब ऑलमोस्ट 4.5 का मल्टीपल दिया। और इस पे इंटरेस्टिंग और एक ये चीज है कि जेप्टो इज ऑल्सो डूइंग मीटिंग्स विद द बैंकर्स, और इट्स एक्सपेक्टेड शब्द यूज कर रहा हूँ कि FY25 मतलब अभी नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में अराउंड इन द थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर ऑफ 25 में जेप्टो का भी आईपीओ आएगा, विच वुड वैल्यू जेप्टो एट क्लोज टू $8.5 बिलियन। तो आई थिंक वो होता है करीब करीब 70,000 करोड़, और उस वक्त इनका रेवेन्यू प्रोजेक्शन है 15 से 16,000 करोड़। मतलब मार्केट इसको 5 टाइम्स ऑफ द रेवेन्यू देने को तैयार है, ओके। तो आई थिंक जो मुझे नंबर से आता है, if I'm talking about FY25 expectations from the Blinkit side, Instamart side, तो I'm expecting कि यार ये ऑलमोस्ट 7 से 8 हजार करोड़ का रेवेन्यू करेंगे।
तो मैं उसके हिसाब से भी बोलूँ तो यार इनका सेगमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी साइड पे भी ज्यादा डिफरेंस नहीं। थिंक वो हाँ वो है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है जेप्टो का, बट द थिंग इज प्रोडक्ट ऑफरिंग्स ऑफ इंस्टामार्ट आर मच हायर बिकॉज। और अभी धीरे धीरे ना इन्होंने मेडिसिन में गए हैं, ये फार्मास्यूटिकल्स में भी इन्होंने पायलट कर चुके हैं और सक्सेसफुली हो रहा है इनका। फिर उन्होंने एसक्यूज भी इनके डबल किए हैं पिछले 12 महीने में। आई थिंक दे आर नाउ करंटली एट 60,000 एसक्यूज, जितना इंस्टा अपना ये नहीं करता है जेप्टो। तो आई फील कि ये वैल्यूएशन इसमें थोड़ा सा ज्यादा है और इट शुड कवर इन द लॉन्ग टर्म। और $8.5 billion तो यार ये इनिशियल वैल्यूएशन है, क्योंकि द ग्रोथ जेप्टो इज सीइंग एंड द इन्वेस्टर्स हैज टेकन, तो ये वैल्यूएशन 10 भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। Got it. Understood. Very interesting. I also feel the same. मेरे को ये लगता है, although this is an interesting point and again a counter argument. अगर आप देखोगे तो इंस्टामार्ट का जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो काफी कम है कंपेयर टू ब्लिंकिट। सिमिलरली इंस्टामार्ट के जो डेली एक्टिव यूजर्स होंगे वो भी कम है। So as a platform, it hasn't been growing at the rate at which it has been growing. So it's just interesting to see how much do you want to give a discount compared to Zomato, but at least it is, again, this is a point, the point of beating ourselves to death. It is well priced. Please do not look at it कि यार Zomato 240 का, ये 390 का है. Look at it as a market cap. ये कितने market cap पे आ रहा है compared to a सर इसमें और एक चीज ऐसी है कि अभी अब अगर आप बहुत मेट्रो सिटीज में जाओगे तो आपको ये मिलेगा जेप्टो। अगर आप मेट्रो प्लस टीयर 1 करोगे तो आपको मिलेगा ये इनका ब्लिंकिट मिलेगा। बट ना व्हाट स्विगी इज डूइंग इज दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड टीयर 2 में भी कर रहे हैं। तो टीयर 2 में बात ऐसा है ना कि रूरल इंडिया और जो अर्बन इंडिया का जो बीच का पोर्शन है टीयर 2 सिटीज, यहाँ का कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं कुछ एस्टिमेट्स नंबर्स पे ज्यादा भी नहीं जाऊंगा, बट भी आपने देखा होगा जो Q2 के नंबर से पूरे इंडिया की कोई भी सेक्टर ले लो आप, बहुत आई थिंक मैं बोलूंगा तो बिलो एस्टिमेट्स है, फिर बोलूंगा तो टेपेड नंबर्स थे। बट इसका मेन रीजन क्या था पता है? पहले बोल रहे थे लोग कि रूरल डिमांड, रूरल कंजप्शन में डेंट था। अभी अर्बन कंजप्शन में भी डेंट आया है, इसलिए Q2 के नंबर ज्यादा वीक नहीं। आप कंजम्पशन देख लो, एफएमसीजी वीक थे नंबर्स, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देख बिलो एस्टिमेट्स आए नो, ईएमएस कंपनीज डिड वेल, बट उसके रीजंस कुछ अलग थे। बट ओवरऑल सेल्स नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे। बट इफ यू कैन सी इन द मिडिल रेंज डिमांड, ये जो टीयर 2 सिटीज थे, तो टीयर 1 में भी छोटी सिटीज, आपको टीयर 3, इनका डिमांड अभी भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको टीयर 2 में अगर जेप्टो और ब्लिंकिट अगर अवेलेबल ही नहीं है तो मार्केट शेयर की बात ही नहीं आती। अवेलेबल तो होना चाहिए ना। तो आई फील जेप्टो तो टीयर 1 में भी अभी तक एक्सपांड नहीं किया, टीयर 2 में आने तो बहुत दूर की बात है। जेप्टो मुझे तो अगले 1.5 साल में तो दिखता नहीं है। और ब्लिंकिट धीरे धीरे जाएगा, बट उसको भी टाइम लगेगा, कम से कम 8-10 महीना तो लगेगा। बट द थिंग इज Yeah, so मेरे पास एक anecdotal evidence है, एटलीस्ट आई एम बेस्ड आउट ऑफ भोपाल, तो भोपाल में ब्लिंकिट है, स्विगी इंस्टामार्ट नहीं है। So maybe that's one difference. But yeah, maybe on that note, how do you compare it with big स्विगी में basket? साउथ साउथ बेस्ड, साउथ में ज्यादा फोकस्ड है। आप अगर साउथ के बहुत सारे स्टेट्स देखोगे तो आपको जोमेटो कुछ नहीं दिखता है, बट स्विगी बहुत दिखता है। नॉर्थ में या फिर Yes. महाराष्ट्र रीजन में आपको जोमेटो का बहुत अच्छा प्रेजेंस दिखता है। तो दैट्स की साउथ में बहुत अच्छा करते हैं स्विगी वाली, वहाँ पे दे आर द सुप्रीम। And how do you compare it with a BB now? क्या क्या सर? बिग बास्केट का बीबी नाव आ रहा है, और उसके अलावा जितना उसको मैंने तो सुना, अचानक से कोई अपना क्विक कॉमर्स प्लेयर बोला। नया प्लेयर है, टाइम लगता है सेटल होने को। और मैं देखूँ तो एक बास्केट है ना, अभी तो बहुत टाइम, मुझे मुझे पता है डायरेक्ट फंडिंग टाटा का है पीछे, बट आई फील इनको और 2 साल तो लगेंगे इनसे कम्पीट करने के लिए। वो तो अब तक बहुत दूर है, रेस में उतरने की तैयारी में है वो, और अभी तक उतरे नहीं है, बहुत टाइम लगेगा उनको आने में। Got it. Maybe switching gears now in the interest of time, want to understand from you. This is a 10% retail quota IPO. Plus, like, so how does that impact? आपको क्या लगता है? Plus, how does, like, how do you think how market works in the next 1 week will impact the listing of this IPO? क्योंकि अभी भी ये IPO काफी दूर है, right? ये आप देखोगे तो अराउंड 8 तारीख को खुल रहा है, so there's good 1 week. नहीं, सॉरी, 6 को खुल रहा है, 8 को बंद हो रहा है, so there's good 1 week before it closes, right? So how do you think this week's equity market impacts it? What is the 10%? How do you think 10% retail impacts it? And what can you say about the quality of the merchant bank? Because I was seeing Kotak was there, and then there were a few other players, including ICICI. सर तो मैं इसको सेगमेंट पे बांटूंगा। तो पहले तो मैं बैंकर्स पे आऊंगा। जैसे बैंकर्स का कंसोर्टियम बहुत अच्छा है, फॉरेन बैंकर्स बेस के अंदर कोटक भी है, आईसीआईसीआई कोटक का। अगर मैं पिछले 1 साल में अगर मैं ह्यूंडई का आईपीओ छोड़ दूं,
तो कोटक के हर आईपीओ ने बहुत अच्छा किया है, और 10% रिटेल में तो वो दे आर सुप्रीम, बिकॉज 10% रिटेल को मैनेज करना, लिक्विडिटी मैनेज करना, हैंडल करना इज आई थिंक मैनेजेबल टास्क। अगर मैं से बोल दूं तो 1100-1200 करोड़ का लिक्विडिटी, और एचएनआई कोटा का भी, एचएनआई कोटा में से आधा तो वो ग्रे वाली चीज होती है। तो वैसा बोलूं तो 1500 CR का लिक्विडिटी मैनेज करना कोटक, कोटक ने बोला, बट कंपनी और आईपीओ के लिए तो इट्स नॉट ऑनेस्टली अ बिग डील। अच्छे से मैनेज हो सकती है, आई फील आराम से मैनेज हो जाएगी। 1100-1500 इज नॉट अ वेरी बिग नंबर, पहली बात। तो दूसरा बात ये है कि इसका एक मेजर फैक्टर है कल की लिस्टिंग एफकॉन्स की। और हुआ ऐसा है कि इट वॉज लुकिंग कि भाई नीचे से रिकवर करके अभी ये 5-10%, 5-7% की लिस्टिंग कर देगा, बट पिछले 2 घंटे में बहुत हैवी सेलिंग हो रही है उसमें भी। 14-15-16 रुपीज पे सेलिंग हो रही है गुजरात में, कोई बायर नहीं है। तो उसका भी लिस्टिंग टेपेड हो जाए तो स्विगी के प्रीमियम्स गिरेंगे नहीं, बट उधर ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। बट और वन मोर थिंग इज लाइक यूएस का जो इलेक्शंस का भी चीजें है, थोड़ा सा ट्रिकी होते जा रहा है। मानो कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तो ऊपर दिख रहे हैं, बट यू नेवर नो, बिकॉज चीजें बहुत अलग है। वहां का पॉलिटिक्स समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा डिस्कशन करना पड़ेगा, उसमें जाना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है ये पॉइंट पे। आई फील यूएस के इलेक्शंस विल सर्टेनली हैव एन इम्पैक्ट, बट और एक चीज ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी इंडिया के प्रति स्टेटमेंट है पिछले 3-4 दिन में, वो बहुत पॉजिटिव है। एंड सी ऑनेस्टली इंडिया के लिए दोनों में से कोई भी आ जाए ना, मतलब कोई बोलेगा कि हमको ट्रंप ही चाहिए, और हमको ये दूसरी पार्टी नहीं चाहिए, कमला हैरिस की। तो आई फील इंडिया के लिए दोनों में से कोई भी आए इज नॉट एक्चुअली अ बिग कंसर्न। इट्स वो मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न के लिए है कि लोगों को ट्रंप चाहिए, बट इंडिया के लिए स्पेसिफिक आई डोंट फील कि इट ऑनेस्टली मेक्स अ डिफरेंस। बिकॉज अगर अब मुझे आया कि वॉर में यूएस का थोड़ा सा होल्ड अलग था, दे आर नॉट ट्राइंग टू स्टॉप इट, और they are not doing what Donald Trump would have done. That is a different thing. But as an Indian economy, or looking as an Indian, I don't. I think 10-20% में छोड़ दूं तो मुझे दोनों में से कोई भी है मुझे चलेगा। तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन स्टॉक मार्केट्स एक लिमिट के से ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। एंड व्हाट आई फील इज लाइक 1,20,000 करोड़ की ऑलरेडी सेलिंग हो चुकी है, एंड सेंटिमेंट अभी 3-4 दिन से वापस ट्रैक पे आ रहा है। एंड आई फील 10% रिटेल है, कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन ठीक रखे, बैंकर्स आर केपेबल, सेगमेंट अच्छा है, डिमांड अच्छी रहेगी, एंकर बुक रहेगी, क्यूए भी रहेगा, तो सर्वगुण संपन्न है यार, क्या चाहिए तुमको, और सब ठीक ही है। मतलब आई डोंट फील इसका लिस्टिंग ऐसा खराब होगा। अच्छा थोड़ा प्रॉफिट होता ना अगर EBITDA लेवल पे भी तो बेस्ट हो जाता। Q3 में आ जाएगा यार। हाँ वो भी सही बात है, बट हैविंग सेड दैट सर एक्चुअली अहमदाबाद में इसका मीट हुआ था, आईपीओ मीट हुआ था। मैं तो नहीं जाता, बट मेरे मतलब पहचान के बहुत लोग जाते हैं। स्विगी जो मैनेजमेंट चीजें बात कर रहा है ना, देख मैं बहुत पॉजिटिव में ज्यादा फिर रिवील नहीं करूंगा कि वो चीजें मतलब पब्लिक ही होती है वो चीजें, बट उसका कोई एक ऐसा रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं दिया जाता है, तो उस पर कम ही बात करना ठीक रहेगा। बट व्हाट आई कुड सेंस आउट ऑफ इट वाज कि एवरीथिंग इज गोइंग, मतलब कॉन्फिडेंस था मैनेजमेंट। आई नो कि यार आपको श्रीहर्षा मजेटी को अगर आप कोई इंटरव्यू पे देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या बंदा है यार ये, दीपेंद्र गोयल इज मच बेटर देन, बट ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो उसको 2019 से सुन रहा हूँ, वो साउंड ना बहुत ऐसा एक नॉर्मल बंदा करता है, बट ही इज वेरी ब्रिलियंट इन बैक ऑफ द माइंड। वो दीपेंद्र गोयल का सामने इंटेलिजेंस दिखता है, उसका उनका दिखता नहीं है, बट ही इज ऑल्सो गुड गाय। एंड द सीएफए वाज आल्सो डूइंग वेल, को-फाउंडर भी अच्छे लोग हैं, वो कॉन्फिडेंट थे बात करते हुए। मतलब उनको बैक ऑफ द माइंड पता है कि हमको क्या करनी चाहिए, और वो जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे आई फील कि उनको पता है कि यार ऋषि इज गोइंग टू डू वेल। तो मैं इसके हिसाब से बात करूंगा, तो मुझे ठीक लगा सब कुछ। got it. एक क्वेश्चन है, मे बी दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आल्सो, वेरी ट्रिकी, मे बी इसका आंसर भी नहीं है। QIB एक्सपेक्टेड QIB सब्सक्रिप्शन, आई विल टेक अ dig at it. I think there is no right answer, completely depends on how the market moves. इतने जल्दी नहीं, इतने जल्दी अभी एंकर बुक की आप मुझे सवाल पूछोगे तो मैं 50% ही उसके जवाब दे पाऊंगा। एंकर बुक तो आई मीन क्यूआईबी तो बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट व्हाट आई फील इज कि इसमें ये अफकॉर्स और ह्युंडई वाली चीजें नहीं होगी कि एंकर बुक में XYZ डिमांड है बट क्यूआईबी पोर्शन आया ही नहीं। आई डोंट फील ये होने वाले स्विगी में सब कुछ स्ट्रांग रहना चाहिए। बिकॉज अगर मैं रिसेंट एक साल में बोलूँ तो स्विगी के एंकर बुक को जो इनिशियल डिमांड के निकल के आ रही है वो हाईएस्ट है, मोर देन ओला, मोर देन Hyundai, मोर देन एफकॉन्स, जो भी आपने वो पब्लिक में नाम सुने हैं, फिर मोर देन इवन वारी से पे ज्यादा डिमांड थी उनको एंकर बुक में। आई एम नॉट कंपेयरिंग वारी, ओके, बट एंकर बुक के बारे में बात कर तो स्विगी का डिमांड अच्छा है, तो
इट शुड डू वेल, और इसमें बहुत अच्छे फंड्स निकल के आएगा। जो इनिशियल नाम की लिस्ट है ना मेरे पास, बहुत अच्छी आई है। तो आई फील कि द पॉइंट इन दिस स्विगी आईपीओ गेम कितना बन सकता है। आई डोंट फील कि ये डिस्काउंट कैंडिडेट है, और नहीं बनता बिल्कुल। कंपनी डिजर्व करती है अच्छी लिस्टिंग। ये कि 10% बनेगा, 20% बनेगा, 30% बनेगा, दैट इज द थिंग। मैं डिस्काउंट को मैं 95% आई डोंट फील इट इज गोइंग टू लिस्ट डिस्काउंट। अच्छी करेगी कंपनी। सो वी विल मेक अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन जब एंकर वो आ जाएगा, तो तब ज्यादा बात करना रिलेवेंट होगा इस पे। Got it. Maybe with that, you've kind of covered on Swiggy, unless you have anything to add, closing comments on Swiggy, or we can very quickly do a high level of sageability, what you think about the company, and then maybe a console already covered स्विगी it. पे स्विगी पे अगले स्पेस में बात करते हैं, अभी दूसरे आईपीओ पे आ जाते हैं। Hmm. Hmm. Very quickly we'll do, maybe next 4 minutes closing remarks, whatever you want to do. सर मतलब दूसरे आईपीओ पे बात करना है क्या? Yeah, maybe just talk about what you think about sageability at a very high level. एजिलिटी का ना सर, वो एक ऐसी कंपनी है जिसको पब्लिक को समझना पड़ेगा। आई फील पीपल मेड मिस्टेक्स ड्यूरिंग मेडी असिस्ट, पीपल मेड मिस्टेक्स ड्यूरिंग ऑफिस स्पेस। आई फील सिमिलर मिस्टेक्स आर गोइंग टू हैपन फ्रॉम पब्लिक इन सेजिलिटी। आपको कंपनी समझनी पड़ेगी। पहला तो जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है उस पर 270 करोड़ का प्रॉफिट है, Q1 में 22 करोड़ रहेगा, तो उसके पीछे रीजन है। वो बिजनेस नहीं खराब हुआ है उनका, ओके। वो बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स है उसके अंदर, गुडविल के एडजस्टमेंट्स है, ईसॉप कॉस्ट है, कुछ और इंटरनल नॉन कैश अकाउंटिंग एंट्रीज है। तो आई फील कि आपने इस कंपनी को ना एबिटा के हिसाब से देखना चाहिए। और ये कंपनी बहुत सॉलिड कैश जनरेटिंग मशीन है, मतलब लिटरली मशीन वर्ड यूज कर रहा हूँ। आप देखोगे तो ये कंपनी है 4600 करोड़ का रेवेन्यू किया FY24। एबिटा आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1110 करोड़ के करीब था, 10-20 करोड़ ऊपर नीचे। तो 1110 करोड़ मतलब 25% होता है। यू नो हाउ मच फ्री कैश फ्लो इट जनरेटेड फ्रॉम दैट 111110? 950 करोड़। It 85 to 87% of the EBITDA was cash. तो दिस शोज द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस का ना एक्चुअली मैं बोलूँ तो ये सैजिलिटी क्या करता है, पहली बात तो समझना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो टेक एनेबल डे, वो प्लेटफॉर्म को समझता नहीं क्या करती है। तो व्हाट ये ना एक यूएस का एडवांस टीपीए की तरह है। व्हाट इज टीपीए? थर्ड पार्टी वो एग्रीगेटर होता है। मेडियासिस्ट आपको रिसेंटली लिस्टिंग पता होगी, ब्रिजेस द गैप बिटवीन द इंश्योरेंस प्रोवाइडर एंड द हॉस्पिटल्स टू द कंज्यूमर। तो व्हाट सैजिलिटी डज, जो बहुत बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज है, तो दुनिया के जो टॉप 10 है उसमें से 5 उसके क्लाइंट्स है, ओके। सॉरी, यूएस की जो टॉप 10 है उसमें से 5 उसके क्लाइंट्स है, और 20 में से आई थिंक 11-12 कंपनी उनके क्लाइंट्स है। तो इनका जो स्केल ऑफ बिजनेस है ना बहुत बड़ा है। मैं जस्ट एक डेटा दूंगा तो द हेल्थ केयर मार्केट ऑफ द यूएस इज $4.5 ट्रिलियन, विच इज 15% मोर देन इंडियाज एंटायर इकोनॉमी। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे याद रहा वो अहमदाबाद के मीट में मैनेजमेंट को एक सवाल पूछा गया था कोई ब्रोकर से कि यार आप इंडिया जैसे इतने बड़े पॉपुलस कंट्री में आप क्यों नहीं हो, आपका पूरा रेवेन्यू यूएस से क्यों आता है? तो इन्होंने उसका भी आंसर था कि वी नो इंडिया इज अ गुड मार्केट, बट जितना इंडिया का इकोनॉमी नहीं उससे ज्यादा तो मार्केट बड़ा सिर्फ हेल्थ केयर का यूएस में है। और द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द बिजनेस इन द इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन द यूएस, दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम। तो इंडिया का जो पूरा है ना बोलूंगा साइकिल इज आई थिंक रिलेटिवली गुड। मुझे पता है कि जो यूजर्स पॉलिसी लेते हैं वो बोलते हैं कहाँ से गुड हुआ है, बट इट्स एक्चुअली बेटर देन यूएस। आपको वहाँ पे वो एक फील मिलता है, बट वहाँ पे बहुत सारे लोग उसको बैकएंड में काम करते हैं। वन ऑफ द कंपनी विच वर्क्स इन द बैकएंड। सो ये पेमेंट्स मैनेज करती है, क्लेम सेटलमेंट्स में मदद करती है, फिर इनका और रीइंबर्समेंट में है। और फिर आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा क्लेम से दे तो जितना ये रिफंड करेगी उसके एक परसेंटेज इसको मिलता है। ये बहुत सारी कंसल्टेंट सर्विसेज देती है। बहुत पुरानी कंपनी है एक्चुअली, आप देखोगे तो 2022 दिखेगा, बट दिस वाज फॉर्मरली अ हिंदुजा ग्रुप कंपनी। हिंदुजा ग्रुप कंपनी से इसको बेरिंग एशिया ने टेक ओवर कर, बेरिंग एशिया को इक्विटी ने टेक ओवर किया। इक्विटी इज स्वीडन की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इक्विटी फंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग फंड है। इसका ये भी निकला था, प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी हुआ था उसमें। अदानी प्रॉपर्टीज, आई थिंक अदानी ग्रुप का ये पहला डायरेक्ट एंटिटी से इन्वेस्टमेंट है प्राइमरी मार्केट में। फिर आरती इंडस्ट्रीज, आरती फार्मा, आरती ड्रग्स, ये जो 3-4 आरती ग्रुप की कंपनी उनके जो प्रमोटर है गोगरी फैमिली, उन्होंने पैसे डाले। फिर एक रिसेंटली आईपीओ फाइल हुआ था 1.5 महीने पहले, मिडवेस्ट लिमिटेड करके, दे आर इंडिया लार्जेस्ट मार्बल कंपनी, बहुत सारे मार्केट में, तो उनके प्रमोटर्स ने डाला। Then 361 monopolistic, Aventus is also a top quality investor.
और मैं देखूँ ना तो ये वैल्यूएशन पे एक्चुअली बहुत सस्ता है। तो एवे एबिटा पे 12.5-13 मल्टीपल पे आया है, एबिटा मल्टीपल 12 टाइम, प्राइस टू बुक वैल्यू तो बहुत इंटरेस्टिंग 1.8 टाइम, 1.8 टाइम बुक वैल्यू, और कंपनी बहुत हेवीली कैश जनरेट करती है। और what I could figure out, it is my instinct, I can be surely wrong, I see this company making a big acquisition post listing in next 6 months। मैं इसको बड़ा एक्विजिशन करते हुए देख रहा हूँ। उनका जो कैश बैलेंसेस है, मैनेजमेंट जो तरह का साउंड कर रहा है, जिस तरह के उन्होंने इंटरव्यूज दिए, जिस तरह के मीट किए, दे शुड डू एन एक्विजिशन इन अ वेरी गुड स्पेस। तो ऐसी वही है ना यार, 10-30 रुपए का शेयर दिखता है पब्लिक को, 10 के फेस वैल्यू पे 30 का शेयर आजकल कहाँ पे मिलता है। 10% रिटेल, पैरेंटेज अच्छा है, इन्वेस्टर्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, कैश जनरेटिंग मशीन है, तो सब तो है इसके अंदर। अभी आप इसको बोलोगे पीई लेवल पे 68 टाइम्स, तो उसको वैसा नहीं देखना, उसमें एडजस्टमेंट्स है। और इसको कंपैरिजन कैसे करना, तो मैनेजमेंट ने खुद बोला था, ये मैनेजमेंट ने जो बोला मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप हमारी कंपनी को फर्स्ट सोर्स और क्वेस्ट कॉर्पोरेशन के साथ कंपेयर करो। मैं इसमें डालता हूँ मेडिसिस से भी, क्यों, बिकॉज 70% ऑफ बिजनेस ऑफ सेजिलिटी इज लाइक एन टीपीए, इंडिया मेडिसिस जो एक ही लिस्टेड टीपी है, 60% मार्केट शेयर। तो आपको इन तीनों से देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से देखो तो 40% सस्ता है। आई फील ये अच्छा करेगा। और मगर सेफ्टी वाइज बोलूँ तो चारों अगले आईपीओ में मुझे सेफ साइड पे यही ज्यादा दिख रहा है कि यार कुछ सेंटिमेंट भी खराब होगा तो आई डोंट सी इट लिस्टिंग इन डिस्काउंट। मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा खासा लिस्ट होगा, मतलब लाइक 20-30-40%। आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ इट लिस्ट 30-40%। Just want to highlight, जैसा पहली चीज तन्मय ने बोली, then maybe this is what we'll do in the next space as well. I would be surprised if it lists that high, क्योंकि लोगों को समझेगी ही नहीं, like unfortunately, and it will take its time. जैसे ऑफिस भी listed decent only, it didn't list great. उसके बाद चला था शेयर comparatively. So I feel it will give you enough chance to entry. Do not, like, again, figure out how it works, figure out how the market does, and then basis that do something for it. ऑफिस के टाइम मुझे याद था, सिर्फ मैंने तो यार ट्विटर पे तब मेरे फॉलोअर्स बहुत कम हुआ करते थे, 4-5 फॉलोअर्स भी नहीं थे मेरे उस वक्त। मैंने बहुत ट्राई किया था कि लोगों को कंपनी समझाऊं समझाऊं, बोलता रहे यार ऑफिस देता है, मैं उसमें ना एक लॉस। दिक्कत होती है कि ट्विटर पे प्रोबेबली इंडिया की 0.1% बुद्धिजीवी जनता है। नहीं बट सर, अभी उसको बिजनेस अप्लाई समझाने के करते लिए हैं। मैं इससे ज्यादा क्या ही कर सकता हूँ यार, जो मेरे साइड से कर पाया मैंने वो पूरा किया। तो मैंने यार सिमिलरली उसको सर। सिमिलरली हाँ, सेजिलिटी भी आप ट्विटर पे समझा दोगे, पर ट्विटर पे जनता नहीं है ना, जनता तो बाहर से अप्लाई कर रही, राइट? सो बी केयरफुल विद सेजिलिटी। स्विगी में उसका इम्पैक्ट मुझे एकदम अपोजिट दिखता है। स्विगी इज अ ब्रांड, लोग अप्लाई करते हैं तो कुछ करो ना करो, उनको बहुत ज्यादा वो नहीं करना पड़े। जैसे Hyundai था, पहले दिन एप्लीकेशन जो एक्सपेक्ट करें लोग उससे ज्यादा है। आई फील सिमिलर वुड हैपन इन स्विगी एज वेल, बट लेट्स सी। मुझे तो लगता है पहले दिन ही भर जाएगा आधा सैलरी। अच्छा मतलब दिक्कत क्या पता है, कि मैं तो फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ, मुझे जीएमपी क्या होता है वो उससे मेरे को लेना देना नहीं होता है। जो मैं देख पा रहा हूँ ना सर, बिजनेस बहुत सॉलिड है इनका, बहुत ज्यादा सॉलिड बिजनेस है। और सर 950 करोड़ का कैश जनरेट करना इज नॉट एट ऑल अ स्मॉल थिंग। सर मिड कैप लेवल की कंपनी उतना नहीं कर पाती है, और बहुत अच्छा कैश जनरेशन है, और ये एक्विजिशन करेंगे। और एक चीज देखो सर, ऑफिस भी देखो ना यार, क्या आई थिंक मेरे को याद है 11% लिस्ट हुआ था, एक टाइम पे इशू प्राइस 3% ऊपर में मिल रहा था। अरे यार ये कितना 1.5 महीने में तो डबल हो गया। ऑफिस मैं तो बोलूंगा ना कि यार ये गो डिजिट हो गया, ऑफिस हो गया। आई थिंक मेरे से मैं अकेला बुलिस्ता हूँ कंपनीज पे, तो बहुत अच्छा किया हुआ। ऐसे फील की अच्छा ना भी लिस्ट हो तो ज्यादा पब्लिक को इसमें पैसा बनाने का मौका मिलेगा। तो आई फील ज्यादा लिस्ट होगा फिर भी ठीक बात है, नहीं हुआ फिर भी ठीक बात है, तो इट्स विन विन गेम फॉर द इन्वेस्टर्स। तो मैं उसको ज्यादा मतलब सीरियसली नहीं लूंगा कि यार नहीं हुआ लिस्ट तो क्या, तो डजंट मेक सेंस, बट आई फील इट शुड डू इट। एग्रीड ऑन दैट फ्रंट कंप्लीटली। मैं भी स्विचिंग है, मेरे पास ना स्विगी को लेके एक दो क्वेश्चन है। सो एक क्वेश्चन तो जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट बिटवीन Zomato and Swiggy. I think Tanmay had already covered it. We feel it's pretty similar, although one person is slightly more flamboyant than the other, but the quality wise, I don't think there's huge difference between the two. Second question, maybe Tanmay, this is something which I wanted to check with you. Zomato ने QIP अपना लाए हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंशियल लाए हैं, वो जिसमें वो रेस कर रहे हैं कुछ बहुत ही इंसेन बड़ा अमाउंट, ऑल्दो दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑन द बुक्स. Why do you think that is happening, and how does that impact Swiggy in any way? सर वो हो रहा है क्विक कॉमर्स का एक्सपेंशन के लिए, बिकॉज फूड डिलीवरी में उनको पैसे की जरूरत नहीं है। तो वही हो रहा है सर, क्विक कॉमर्स है ना। रिसेंटली एक्चुअली रिदम ने सही जिन्हें बात करी, मॉर्गन स्टैनली के इंडिया के हेड। तो वही बात थी कि यार क्विक कॉमर्स में सब इतना हेवीली एक्सपेंशन कर रहे हैं कि यार इसमें शॉर्ट टर्म में 2-3 साल में किसी का पैसा नहीं बनेगा, ऐसा उनका कहना है। And actually, I agree that, but the thing is, like, the market and the TAM is very, very huge.
और इंडिया का मैं आज भी बोलूँ तो बहुत ज्यादा अंडर टैप मार्केट है। अगर मैं एक फूड डिलीवरी कंपनी बोलूँ, मीचुआन करके, मीचुआन इज आई थिंक इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन यूएस, सॉरी चाइना की कंपनी है। या फिर सिंगापुर भी ले लो, सिंगापुर का आई थिंक एक कंपनी है, नहीं जर्मनी का है, डिलीवरी हीरो करके कंपनी है। जो सिंगापुर का, दैट इज उबर्स इंडिया, उबर्स सिंगापुर सब्सिडरी ऑफ द फूड डिलीवरी। सर सिंगापुर जैसे इतना सा तो देश है वो, दो बम्बई भी नहीं बैठेंगे उसमें, उसका वैल्यूएशन 3 लाख करोड़ है। और डिलीवरी हीरो जर्मन जैसा है, तो उनके भी वैल्यूएशन 2-2.5 लाख करोड़ है। दे आर ऑल्सो ऑन द सेम स्केल, सेम सारा सब कुछ ठीक है। इतने छोटे देशों में अगर वो इतना बड़ा बिजनेस, जोमेटो के लेवल का बिजनेस है उनका, इतने छोटे देशों में, जर्मनी सिंगापुर तो बहुत ही छोटा है यार, दो बॉम्बे भी नहीं बैठेंगे उसमें। तो व्हाट आई फील इज यार, इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। सर ये जो इन्वेस्टर, मैं एक इन्वेस्टर्स का ना, एक मैं अगर मैं बाइफर्केशन करूँ ना जोमेटो स्विगी का, तो जोमेटो के इन्वेस्टर्स आप देखोगे ना, स्पेशल म्यूचुअल फंड के साइड इन्वेस्टर्स, फिर प्राइवेट इक्विटी फंड जो उनका जो थोड़ा सा स्टेक बचा है, तो ये ऐसे लोग हैं ना जिनको एक वैल्यूएशन मिले तो निकल जाएंगे, रखेंगे नहीं। हाँ, जोमेटो में कौन रहेगा? इन्फोएज, इन्फोएज नहीं बेचेगा, बट एवरीवन एल्स इज देयर टू मेक मनी। बट जो मैं इन्वेस्टर्स का क्वालिटी और देख पा रहा हूँ ना स्विगी में, कि यार 3 साल में तो नहीं, 2.5-3 साल के नीचे तो नहीं बेचेंगे ये लोग। तो दे आर बेटिंग ऑन द फ्यूचर, एंड वी एज एन इन्वेस्टर शुड ऑल्सो बेट ऑन द फ्यूचर। कि आई नो कि बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, बिग बास्केट आ रहा है, टाटा आ रहा है, टाटा बिग बास्केट सेल है, तो अदानी इज ऑल्सो कमिंग। रिलायंस 2016-17 में कॉमर्स करके फेल हो चुका था, बंद हो गई कंपनी उनकी, वापस आ रहे हैं वो। बहुत कंपटीशन आएगा, बट मार्केट भी उतना बड़ा है। तो भी लोग बोलते थे कि यार जियो आया तो भारत एयरटेल बंद हो जाएगा, यार वो वहां से भी 3 गुना हुई कंपनी। तो इट्स नॉट द थिंग कि कोई बड़ा प्लेयर है तो छोटे प्लेयर्स खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। Market is very huge, all will survive. See, all will survive in the sense all will not able to make money, but I don't feel कि seeing the size of the management of the each company, आप कोई भी ले लो, तो they should do well. Got it. Maybe with that, I'll kind of end very similar lines with what Tanmay said. I feel like Swiggy's valuation completely depends on how do you see it. Do you see it as a Do you see Zomato becoming a monopoly in the future, or do you think it will be oligopoly where 2-3 people will kind of coexist in the market? Like in case of telecom also, you have a Bharti Airtel along with a Jio and then a struggling Vodafone. यहाँ पे भी I feel it is a oligopoly. It will never be a complete monopoly. Probably market is valuing Zomato either as a monopoly or they just have to bring the valuation of both Swiggy and Zomato at some comparable level. Right now the valuation is too different per se. So I'm fairly positive about the issue. I will continue to be watch the developments of next week and उसके basis पे मैं decide करूंगा what I want to do. But yeah, this is what our initial read was with respect to Swiggy. We also covered Sagility at a very high level, although it wasn't the uh, essential motive behind the space. उसके अलावा from what I'm reading on a chat, Zomato is also raising money to bring down the foreign holding. उनको अपनी foreign holding कम करनी है because they can only invest in a marketplace model and not an inventory based model, which Zomato probably can think about becoming in the future. But yeah, that's one another interesting point. With that, maybe Tanmay, do you have any closing comments, or we can kind of end the space here? ऐसा कि यार एक पॉइंट था कि यार जोमेटो को इतना ज्यादा वैल्यूएशन क्यों मिल रहा है। तो आई थिंक इससे 3-4 रीजन है। पहला तो इट वाज द ओनली कंपनी व्हिच वाज लिस्टेड इन इट। अभी आप देखोगे तो प्रीमियर के साथ भी सिमिलर हुआ था, 1200 1150 वारी के बाद वो 1950 तक आ गया। अब रिसेंट ऑर्डर विंस के न्यूज से बड़ा है। बट इट हैपेंस कि यार जब आप अकेले होते हो आपको एक प्रीमियम मिलता है। तो इसमें 2-3 चीजें कि एक तो जोमेटो आई पर्सनली फील कि एक ओवर वैल्यूएशन की तरफ है, इसको एक 1.7-1.8 लाख करोड़, मतलब ऐसे 20% नीचे ही मिलना चाहिए। एंड so Swiggy should also get at least 30% below it. तो ये और ये जो ना सर कंजम्पशन है, इंडिया का जो पॉपुलेशन है बहुत यंग है, दुनिया में यंगेस्ट पॉपुलेशन। तो कंजम्पशन स्टोरी बहुत बढ़िया। आप देखोगे तो अगर आप कंजम्पशन पे आपको बेट लेना है तो आप एफएमसीजी में लगा सकते हो, बिकॉज वो 4-6% के बियॉन्ड नहीं ग्रो कर सकता है। आप कोई सिक्लिकल चीज में, तो द बेस्ट फॉर यू इज द फूड डिलीवरी। जो आई थिंक एक रिपोर्ट आया था अगले 3 या 4 साल में फूड डिलीवरीज पोस्ट टू आई थिंक 37% काइंड ऑफ CAGR। and duopoly market. So I personally don't feel any new player coming in the food delivery business for at least next 5 years who can even be half of both of them.
तो ये फिर ओलिगोपोली कंटिन्यू रहेगी, बट ये इंस्टामार्ट में ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगी, जहाँ पे 5 to 7 प्लेयर्स विल कम्पीट। आई थिंक 4 या 5 बड़े प्लेयर्स होंगे, बाकी तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं जो आके 2 साल बाद बंद होके वापस चले जाएंगे। और एक चीज की, विल स्विगी, मतलब ये मोनोपोली होगा क्या जोमेटो? आई डेफिनेटली डोंट फील कि आप देखोगे तो कैश कितना है यार स्विगी के बुक्स पर और कितना पैसा आ रहा है। मतलब आई फील कि अगर स्विगी even doesn't deliver any growth in next 3 years, still it can survive for the fourth year, इतना कैश है इनके बुक्स पे। तो मतलब मुझे कोई, और डेट फ्री कंपनी सर, पोस्ट इशू सिर्फ 100 करोड़ का डेट पड़ेगा स्विगी, विच इज नथिंग। 100 करोड़ इज नथिंग। तो आई डोंट फील किसी भी तरह की मोनोपोली होगी, इट विल बी अ डुओपोली मार्केट, और अच्छा करेगा, सब दोनों I प्लेयर्स also विल डू वेल। Yeah, I also remember listening to this point very clearly from the management. He also said exactly this. जब उनसे पूछा कि लोग क्यों bet करें Swiggy, he said this is a proxy to consumption. If you believe in consumption, you should essentially go and invest in Swiggy. And at the valuations at which you are getting compared to a FMCG, etc., I think it makes sense. Obviously, you can't compare it at a PE, but I kind of ended with if you want to compare it at a and EV by sales, kind of EV by sales would probably be a enterprise value by the trailing 12 month sales would be a good comparable. Swiggy is at like 6.94, Zomato is at 13.2, so almost double. So there is enough left on the table, I feel, and that valuation should at least come closer in some direction. I'm not saying Swiggy needs to come up or Zomato needs to go down, but it would be interesting. We'll see how it develops, and I know a lot of people here kind of take very short-term views basis just IPO and listing gains. So we'll see how that also develops over the next week. There is just so much time in it that we didn't want to give a verdict very soon, and we'll come back with our verdict. Probably we'll do a space on Wednesday जहाँ पे हम सेक्यूरिटी के बारे में भी बात करेंगे काफी डिटेल में. Rohit unfortunately couldn't join the space, neither could Yash, but they'll also be back and we'll talk about Sagility, we'll talk about Acme Solar, which is a very interesting company. I don't think more people समझ रही है. So I will reserve the views on that one as well, but yeah, we'll come back with all three of those companies and we'll see you again on Wednesday. Thank you so much guys for joining. In the meanwhile, if anyone has missed any of these parts, ऊपर पिन कमेंट्स में ना यूट्यूब चैनल है, गो अहेड एंड फॉलो द यूट्यूब चैनल. वहां पे मैं ये स्पेस रिकॉर्डेड स्पेस भी डाल दूंगा आज नाइट में, सो यू कैन गो अहेड एंड लिसन टू दैट एज वेल. विद दैट, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे अहेड. थैंक यू।